السلام علیکم ناظرین، 4TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ طوفان مونتھا کا آندھرا پردیش کے ساحل سے ٹکرانے کا عمل شروع۔ طوفانی ہواؤں کے ساتھ کئی اضلاع میں بارش، درخت اور کھمبے اکھڑ گئے۔ 180 سے زائدہ ٹرینیں منسوخ۔ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع بشمول حیدرآباد پر بھی اثر۔ تمڈی ہٹی سے سندیلا تک 80 TMC پانی منتقل کرنے کی منصوبہ بندی کی جائے۔ مرکزی وزیر CR پاٹل کے مکتوب پر وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ نومبر کے دوسرے ہفتے میں دوبارہ اجلاس۔ تلنگانہ رائزنگ فلم انڈسٹری کے لیے خصوصی باب ہوگا۔ فلم ورکرز کے لیے 10 کروڑ روپے سے ویلفیئر فنڈ قائم کیا جائے گا۔ فلم ورکرز کی اعزازی تقریب سے ریونت ریڈی کا خطاب۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب میں کانگریس کی کامیابی یقینی۔ MIM کا باہمی تعاون حاصل۔ اقلیتی قائدین کے ساتھ مہیش کمار گوڑ کا اجلاس۔ CPM ماویسٹ کے 2 سینئر لیڈرز نے DGP کے روبرو اختیار کی خود سپردگی۔ 4 دہائیوں سے سرگرمیوں میں تھے ملوث۔ اور سنتوش نگر حدود میں نالے سے 1 ماہ کی بچی کی لاش دستیاب۔ شرمناک واقعے کے ذمہ داروں کی تلاش کے لیے پولیس متحرک۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ QMax فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، QMax فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص۔ 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ QMax فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر۔ سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس،
स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। तूफान मोंथा का आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराने का अमल शुरू हो गया है। ताकतवर तूफान के असर से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और दूसरे अजला में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हो रही है। कई साहिली इलाकों में मुकामी हुक्काम की तरफ से लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात किए जा रहे हैं और आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की तरगीब दी जा रही है। समंदरी तूफान से निमटने के लिए एनडीआरएफ की 25 टीमों को आंध्र प्रदेश के अलावा उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और पांडुचेरी में तैनात किया गया है। आंध्र प्रदेश के 17 अजला में रेड अलर्ट, 5 अजला में ऑरेंज और बाकी के 4 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से काकीनाडा, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, कडप्पा, अमलापुर और दूसरे अजला में शदीद बारिश हो रही है। बताया गया है कि समंदरी तूफान भीमवरम के पास टकराएगा और उस वक्त इलाके में 90 से 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश के अजला जो बारिश से मुतासिर होंगे, इनमें गुंटूर, प्रकाशम, कृष्णा और एलुरु शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। जनूबी आंध्र प्रदेश के इलाकों में 29 अक्टूबर तक 20 सेंटीमीटर बारिश का खदशा जाहिर किया गया है। आंध्र प्रदेश के कई मुकामात से तेज हवाओं की वजह से दरख्तों के उखड़ने की भी इत्तला मिली है। साहिली इलाकों में बचाव और राहतकारी की टीमों को तैनात किया गया है। मछेरों को समंदर में न जाने की हिदायत दी गई है। मंगल रात देर गए के बाद गैर मामूली बारिश की पेशकयासी की गई है। कई साहिली इलाकों से अवाम का तखलिया करा दिया गया है। तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश के कई एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई खिदमात मुतासिर हुई हैं, जबकि ईस्टर्न और साउथ और सेंट्रल रेलवे ने बड़ी तादाद में ट्रेनों को भी मनसूख किया है। हुकूमत की तरफ से कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं। इत्तला है कि 183 ट्रेनें समंदरी तूफान की वजह से मुतासिर हुई हैं। कई मुकामात से दरख्तों और खंभों के उखड़ने की भी इत्तलात मिल रही हैं। समंदरी तूफान के टकराने के बाद सैलाब का खदशा भी पाया जाता है। विशाखापट्टनम और काकीनाडा के कई इलाकों में नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए हैं और गाड़ियों को पानी में बहते हुए देखा गया। शदीद बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश के कई ज़खायर आब की सतह में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। 3 ज़खायर आब से पानी का इखराज भी अमल में लाया जा रहा है। समंदरी तूफान मोंथा का असर तेलंगाना के बेशतर अजला में भी देखा जा रहा है। हैदराबाद में पीर की रात देर गए से सुबह तक भी बारिश का सिलसिला जारी था और मंगल की सुबह 9 बजे के बाद से वक्फे से बारिश हुई। ताहम दोपहर 1 बजे के बाद बारिश थमी हुई देखी गई, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद से कई मुकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई है। मंगल की शाम तक भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। रात देर गए मजीद बारिश की पेशकयासी की गई है। समंदरी तूफान मोंथा मंगल की रात आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराएगा। पेशकयासी की गई है कि मंगल और चारशंबे को रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में मंगल की शाम कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड हुई है। जुनूबी शहर के भी कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। तेलंगाना के खम्मम, भदाद्री, नलगुंडा, सूर्यापेट, मिर्चल, कामारेड्डी, विकाराबाद, महबूब नगर, नागर कर्नूल, यादाद्री, भोनगिर, मुलुगु और महबूबाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रह सकता है। वज़ीर आला ने मेडिहट्टी से सुंदेला तक 80 टीएमसी पानी मुंतकिल करने के लिए दरकार मनसूबाबंदी तैयार करने की हिदायत दी। तो मेडिहट्टी प्रोजेक्ट पर वज़ीर आला ने जायजा इजलास लिया। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद को आबपाशी और पीने के पानी की फराहमी के लिए जामे मनसूबा तैयार किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि साबिका कामों से इस्तेफादा करते हुए तखमीना जात तैयार किए जाएं ताकि मनसूबाबंदी में तसलसल बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की मरम्मत करके इसे इस्तेमाल में लाने और श्री पदमली तक पानी पहुंचाने के लिए दरकार मंसूबे और तखमीने जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी दी है।
मरकजी वजीर CR पाटिल की मकतूब पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जायजा इजलास लिया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आला अहदेदारों के साथ मरकजी वजीर आबी वसाइल CR पाटिल के हालिया मकतूब पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वजीर आला ने खत्मी दर्ज निकात की वजाहत करते हुए अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी कि मकतूब में मज़कूरा प्रोजेक्ट्स का प्रोजेक्टवार तज्जिया किया जाए और मुकम्मल रिपोर्ट्स तैयार की जाएं। उन्होंने रियासत की तमाम आबी ज़खायर डैम्स पर तफसीली स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने की भी हिदायत दी। मीटिंग में सुंदिला, अनारम और मेडगड्डा बैरेजेस की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि बैरेजेस की मरम्मत के लिए दरकार मनसूबे जल्द तैयार किए जाएं और मुतालिका एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए। मजीद कहा कि तमाम प्रोजेक्ट्स की तफसीली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर आइंदा इक़दाम तय करने के लिए नवंबर के दूसरे हफ्ते में दोबारा जायजा इजलास मुनक्किद किया जाए। कपास किसानों के मसाइल पर वजीर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने CCI चेयरमैन से मुलाकात की। मुंबई में वजीर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI के चेयरमैन ललित कुमार गुप्ता से मुलाकात करते हुए तेलंगाना के कपास किसानों को दरपेश मुश्किलात पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने गैर मौसमी बारिशों से मुतासरा किसानों को राहत देने, नमी की हद 12 से बढ़ाकर 14% करने और कपास की कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP में इजाफा करने का मुतालबा किया। वजीर ने यह भी कहा कि तमाम अजला में CCI खरीदी मराकज़ बढ़ाए जाएं और मुतासरा किसानों के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज दिया जाए। चेयरमैन CCI ने यकीन दिलाया कि तमाम तजावीज़ मरकजी हुकूमत के साथ ज़ैर गौर लाई जाएंगी। फिल्म सनत के वर्कर्स की एजाज़ी तकरीब जो यूसुफगढ़ में मुनक्किद हुई, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। फिल्मी सनत की वर्कर्स और तंजीमों ने वज़ीर आला को तहनीत पेश की। इस मौके पर फिल्म वर्कर्स यूनियन की जानिब से मुनक्किदा एजाज़ी तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को हैदराबाद मुंतकिल करने में उस वक्त के वज़ीर आला डॉक्टर M चिन्ना रेड्डी की बड़ी कोशिशें रहीं। उन्होंने फनकारों और टेक्नीशियंस की मेहनत को सराहते हुए कहा कि आप रात दिन एक करके काम करते हैं, आपकी मेहनत ही फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान बेहतर राब्ते के लिए दिलराजू को फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। उन्होंने ऐलान किया कि नंदी अवार्ड्स की जगह गदर अवार्ड्स दिए जाएंगे ताकि अवामी जद्दोजहद और फनकारों की कुर्बानी को सराहा जा सके। वज़ीर आला ने कहा कि तेलुगु फिल्मों को ऑस्कर सतह तक पहुंचाने में फिल्म वर्कर्स का बड़ा किरदार रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि हैदराबाद आलमी फिल्म इंडस्ट्री का मरकज़ बने। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 मंसूबे में फिल्म इंडस्ट्री के लिए खुसूसी बाब शामिल होगा। उन्होंने कहा कि सेहत की सहूलतें आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त फराहम होंगी। फिल्म वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर फंड कायम किया जाएगा जिसके लिए हुकूमत 10 करोड़ रुपए देगी। फिल्म वर्कर्स एसोसिएशन बिल्डिंग की तामीर के लिए हुकूमत माली इमदाद करेगी। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि नवंबर के आखिर में वर्कर्स के मसाइल पर एक और मीटिंग होगी और उनकी फलाह के लिए अमली मंसूबा पेश किया जाएगा। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाएं। गोलकुंडा होटल में सदर PCC की सदारत में कांग्रेस के अक़लियती क़ायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अक़लियती मशीर बराए हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर व काबीनी वज़रा पूनम प्रभाकर B विवेक के अलावा कॉरपोरेशन सदूर मौजूद थे। इजलास में बाज़ क़ायदीन ने अक़लियतों के मसाइल बिलखुसूस अक़लियती वज़ीर का न होने पर तशवीश का इज़हार किया और अक़लियतों के मसाइल को उठाया, जिस पर सदर PCC महेश कुमार गौड़ ने कहा कि MIM मुकम्मल ताउन कर रही है। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स में 2 डिवीज़न में सख्त मुकाबले हैं, वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मुस्लिम वज़ीर का मामला है, वो इस मसले को वज़ीर आला के इल्म में लाएंगे। उन्होंने कहा कि MIM के साथ बाहमी इत्तेफाक के साथ काम करें और एक दूसरे की मदद करें। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट श्री किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि 10 साल इख्तिदार में एक दिन भी ऑटो ड्राइवरों की खबर न ली, मगर जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के वक्त अचानक ऑटो वर्कर्स की फलाह याद आ गई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने 10 साल में तकरीबन 42 करोड़ रुपए के चालान आयद किए। कांग्रेस हुकूमत ने ख़वातीन पर घरेलू बोझ कम करने के लिए गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की और ख़वातीन के लिए RTC बसों में मुफ्त सफ़र का इंतज़ाम किया। उन्होंने कहा कि KTR जुबली हिल्स इलेक्शन के पेश नज़र नए ड्रामे कर रहे हैं। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 2 साल में नालों,
तालाबों, सिवरेज और गरीब बस्तियों की तरक्की जैसे कई अवामी काम किए हैं। उनके मुताबिक बीआरएस दौरे हुकूमत में न तरक्की हुई न रोजगार, सिर्फ एक ही खानदान की खुशहाली बढ़ी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कार्यक्रम प्रोजेक्ट पर तवज्जो देने के अलावा बीआरएस हुकूमत ने किसी और शोबे में कोई पेशरफ्त नहीं की। फंड्स और ओहदे केसीआर खानदान और उनके रिश्तेदारों तक महदूद रहे। उन्होंने कहा कि अगर रियासत कर्ज के बोझ तले न दबती और मरकज से बेहतर ताल्लुकात रखती तो तेलंगाना को हजारों करोड़ के फंड्स मिल सकते थे। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए बिहार के ढाका असेंबली हल्के पहुंचे। मुकामी अवाम की तरफ से फलकशगाफ नारों में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इस्तकबाल किया गया। बिहार के इंतखाबी अमल में मजलिस के हिस्सा लेने से ज़बरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी उम्मीदवारों के लिए बिहार के मुख्तलिफ हल्के जात में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कहा कि महबूबनगर के साथ तारीखी नाइंसाफी की गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपने ही जिले से गद्दारी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट एक अहम हिस्से का रिजर्वायर का आज दौरा करते हुए तेलंगाना जागृति की सदर और साबिक एमपी कल्वाकुंटला कविता ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि महबूबनगर जिले के साथ तारीखी नाइंसाफी की जा रही है और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपने ही जिले के साथ नज़रअंदाज कर रहे हैं और इसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। कविता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट्स पर आर्जी मुअत्तली आयद की थी, मगर हुकूमत की जानिब से आज तक रिव्यू पिटीशन दाखिल न करना अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि CWC ने इन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी मनसूख करके फहरिस्त से निकाल दिया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत खामोश है। वज़ीर आला को अपनी ही जिले के अवाम की फिक्र नहीं है। कविता ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी जो खुद को पालमूरू का सपूत कहते हैं, वही अपने जिले के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో మరి పెద్ద ఎత్తున ఆటో డ్రైవర్లందరూ కూడా ఇక్కడ మాతో పాటు రిజర్వాయర్లు చూడడానికి కూడా అంత శ్రమ కోర్చి ఆటోలు ఎక్కించుకొని మరి పైకి వచ్చిండ్రు. వారందరూ కోరుతున్నది ఒకటే, వివిధ జిల్లాలలో ఆటో డ్రైవర్లుగా ఉన్నటువంటి వారు, ముఖ్యంగా మహబూబ్ నగర్ లాంటి ప్రాంతాలు, హైదరాబాద్కి దగ్గరగా ఉండేటటువంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఆటో డ్రైవర్స్ వారు జీవనం గడవక ఇక్కడ జిల్లాలలో డిమాండ్ తక్కువ ఉండి ఒక 2 రూపాయలు ఎక్కువ వస్తాయని హైదరాబాద్ పట్టణానికి అప్పుడో ఇప్పుడో వచ్చి వాళ్ళు ఆటోలు నడుపుకుంటుంటారు. శివారు ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువగా వాళ్ళు నడుపుకుంటూ ఉంటారు. మరి మీ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అటువంటి పేద ఆటో డ్రైవర్లకు ఇచ్చిన మాటలన్నీ తప్పినరు. వాళ్ళంతటా వాళ్ళు కష్టపడి 2 రూపాయలు సంపాదించుకుందామంటే మీరు దాడులు చేస్తున్నారు, కేసులు పెడుతున్నారు. నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని గుర్తు చేస్తా ఉన్నా, మీరు ఏదైతే ఆటో డ్రైవర్లకు 12,000 ఇస్తామన్నారో తక్షణం అది రిలీజ్ చేయండి. ట్యాక్సులు రద్దు చేస్తామన్నారు, అది రిలీజ్ చేయండి. ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టి మీరు హైదరాబాద్కు వస్తున్నటువంటి వాళ్ళని కూడా కొత్త కొత్త రూల్స్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. అటువంటి ఇబ్బందులు దయచేసి గురి చేయకండి. మీరు ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ ఫ్రీ జోన్ చేయాలని మాట్లాడినారు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఇవాళ ఆటో డ్రైవర్లకు కూడా హైదరాబాద్ నగరం అందుబాటులో లేని పరిస్థితి వచ్చింది. మహబూబ్నగర్ జిల్లా వాళ్ళకు కూడా హైదరాబాద్ అనేటటువంటిది ఫ్రీ జోన్ లేకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి దీన్ని మీరు తీవ్రంగా పరిగణించాలి. మీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ గారికి మీరు తొందరగా ఆర్డర్స్ ఇవ్వండి. రూరల్ ఆటో డ్రైవర్స్ జీవనోపాధిని కాపాడండి. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर हरीश राव के वालिद सत्यनारायणा तवील अदालत के बाद चल बसे। सियासी खतूत से बालातर होकर मुख्तलिफ कायदीन ने हरीश राव के वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। दोपहर में बीआरएस लीडर के वालिद की अर्थी का जुलूस निकाला गया। मुख्तलिफ जमातों के लीडर्स अर्थी के जुलूस में शरीक थे। इससे पहले बीआरएस पार्टी के सरबराह केसीआर, उनकी अहलिया शोभमा, कारगुजार सदर KT रामाराव, साबिक वज़रा रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, जुबली हिल्स हल्के की उम्मीदवारा मागुंटी सुनीता और दूसरे लीडर्स ने भी हरीश राव की क़यामगाह पहुंचकर इजहार ताज़ियत किया। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर महेश कुमार गौड़ के अलावा दूसरे कायदीन ने भी हरीश राव से इजहार ताज़ियत किया है। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर बीआरएस लीडर हरीश राव के वालिद के देहांत पर इजहार ताज़ियत किया है। मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में आज तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम कदम उठाते हुए 734 एकड़ की आराजी मूसा नदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को हवाले करने के अहकाम जारी किए हैं।
वाज़ेह है कि मूसी रिवर डेवलपमेंट के लिए इससे पहले भी हुकूमत की तरफ से इक़दामात का ऐलान किया गया था और अब पहली बार इस सिलसिले में आराजी को डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हवाले करने का ऐलान किया है। 2 सीनियर माओइस्ट लीडर्स ने मंगल को रियासती डीजीपी श्रीधर रेड्डी की मौजूदगी में खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। डीजीपी श्रीधर रेड्डी ने बताया कि पुलवाल प्रसाद राव उर्फ चंद्रन्ना और बंडी प्रकाश उर्फ प्रभात ने हथियार डालकर खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। डीजीपी ने बताया कि ये दोनों माओइस्ट लीडर्स 4 दहाइयों से सीपीएम माओइस्ट के तहत कई सरगर्मियों में मुलविस थे। प्रकाश उर्फ प्रभात पर 20 लाख रुपए का इनाम था। डीजीपी ने बताया कि इस साल अब तक 427 माओइस्ट पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि चंद्रना पर भी 25 लाख रुपए का इनाम था। आज सीपीआई माओवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय सदस्य, कमेटी सदस्य जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर है, पुलूरी प्रसाद राव इलियास चंद्रन्ना, आज पार्टी से बाहर आके, सीपीआई माओवादी पार्टी से बाहर आके आज आत्मसमर्पण करा है। उनके साथ और एक वरिष्ठ नेता बंडी प्रकाश, वो जो स्टेट कमेटी मेंबर के रैंक पे है, वो भी बाहर आके उन्होंने भी आत्मसमर्पण किया है गवर्नमेंट के सामने। तो ये तो बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि चंद्रन्ना जो है 45 साल से सीपीआई माओवादी, एर्लियर सीपीएमएल पीडब्ल्यू देन सीपीआई माओवादी पार्टी में रहे हैं और वो 17 साल से सेंट्रल कमेटी मेंबर के ओहदे पे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा क्षति है पार्टी के लिए। और बंडी प्रकाश जो भी वो आइडियोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रांग नेता हैं, वो भी बाहर आ गए हैं। सो इसके वजह से ज़रूर पार्टी पे बहुत बड़ा असर रहेगा सीपीआई माओवादी पार्टी के ऊपर। कमिश्नर हाइड्रा एवी रंगनाथ ने मंगल को सदियों की तारीखी अहमियत की हामिल बम रुकनुद्दौला झील का तफसीली मुआयना किया। 1770 में इसे नवाब रुकनुद्दौला ने तामीर करवाया था। ये झील 18 एकड़ पर मुहित है। हाइड्रा की जानिब से इस झील के तज़यीन का काम किया जा रहा है। झील के पास वॉकिंग ट्रैक, पार्क, ओपन जिम, प्ले जोन भी कायम किए जा रहे हैं। झील के आसपास सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। हाइड्रा के मुताबिक नवंबर के आखिर तक इस झील की तज़यीन के अलावा दूसरे कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के इलाके इरागड्डा में रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने मजलिस पार्टी के सरगर्म कारकुन यासिर अरफात, नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खान, कोऑप्शन मेंबर जानी मियाँ, मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अजहर के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर व मोतमदीन ने राय दहिंदों से मुलाकात की और नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अफराद ने मजलिसी लीडर्स का पुरजोश इस्तकबाल किया और नवीन यादव को अपना कीमती वोट देने का यकीन दिलाया। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के इलाके बोराबंडे का मजलिसी लीडर्स ने तफसीली दौरा किया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम में मजलिस की जानिब से रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, साबिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर नरसिंह राव और मजलिस के सरगर्म कारकुन अनवर सादात ने राय दहिंदों से मुलाकात करके उन्हें नवीन यादव को कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अफराद ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो मजलिस का साथ देते हुए नवीन यादव को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में दूधबावली डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रुकन बलदिया मोहम्मद सलीम ने जीएचएमसी के अहदेदारों के हमराह उस्मान बाग और बनलागुड़ा का दौरा किया। मज़कूरा इलाकों में उन्होंने एसडब्ल्यू ड्रेन और सीसी रोड के कामों का मुआयना किया, जहां गुत्तेदारों की लापरवाही की वजह से रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने जीएचएमसी जोनल कमिश्नर से कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मज़कूरा तरक्याती काम 33 लाख रुपए की लागत से किए जा रहे हैं। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। संतोष नगर डिवीजन में इंसानियत को शर्मसार करने का वाक़या पेश आया है।
तफसीलात के मुताबिक संतोष नगर पुलिस स्टेशन हदूद में राजीव गांधी नगर के नाले से 1 माह की बच्ची की लाश दस्तयाब हुई है। मुकामी अवाम ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। क्लूज टीमों को भी तलब कर लिया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। 1 माह की बच्ची की लाश नाले तक कैसे पहुंची? क्या इसे पैदा करने वालों ने इसे नाले में फेंका है? मुख्तलिफ जावियों से पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हदूद में डिफेंस कॉलोनी में बाइक के सरके की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक पीर की रात घर के बाहर पार्क की हुई 2 व्हीलर का 3 नामालूम अफराद ने सरखा कर लिया। सीसीटीवी में भी इसका मंजर कैद हुआ है। लंगर हाउस पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। सारिकों की तलाश जारी है। बंडलागुड़ा मंडल तहसीलदार दफ्तर की इमारत के छत का जुजवी हिस्सा मुनहदिम हो गया। ये इमारत साल 2003 में तामीर की गई थी। इस दफ्तर से चंद्रायन गुट्टा, याकूतपुरा और बहादुरपुरा के अवाम मुख्तलिफ कामों के लिए रुजू हुआ करते थे। मंगल की सुबह दफ्तर के एक हिस्से का छत अचानक मुनहदिम हो गया। दफ्तर में काम करने वाले मुलाजिमीन फौरी मुकाम वाक़े से हट गए। ताहम मुलाजिमीन में खौफ पाया जाता है कि कहीं पूरी इमारत मुनहदिम न हो जाए। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर रेलवे मुलाजिमीन की चौकसी की वजह से एक शख्स की जान बचाई गई। तफसीलात के मुताबिक 31 साला मिनीदीप वरंगल से काचीगुड़ा आया था और वो बेंगलुरु जाने वाला था। मिनीदीप के पास जनरल टिकट था, लेकिन वो एसी के डब्बे में सवार हो गया और जब वो ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था, अचानक नीचे गिर पड़ा। पटरियों के नीचे आने से पहले असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर गोविंद राव और आरपीएफ की कांस्टेबल सुनीता ने उसे बचा लिया। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हुआ है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद।
तूफान मोंथा का आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराने का अमल शुरू। तूफानी हवाओं के साथ कई अजला में बारिश, दरख्त और खंबे उखड़ गए, 180 से ज्यादा ट्रेनें मनसूख। तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद पर भी असर। तुमडीहट्टी से सुंदेला तक 80 टीएमसी पानी मुंतकिल करने की मंसूबाबंदी की जाए। मरकजी वजीर सीआर पाटिल के मकतूब पर वजीर आला का जायजा इजलास। नवंबर के दूसरे हफ्ते में दोबारा इजलास। तेलंगाना राइजिंग फिल्म इंडस्ट्री के लिए खुसूसी बाब होगा। फिल्म वर्कर्स के लिए 10 करोड़ रुपए से वेलफेयर फंड कायम किया जाएगा। फिल्म वर्कर्स की एजाजी तकरीब से रेवंत रेड्डी का खिताब। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी। एमआईएम का बाहमी ताउन हासिल। अक़लियती कायदीन के साथ महेश कुमार गौड़ का इजलास। सीपीएम माविस्ट के 2 सीनियर लीडर्स ने डीजीपी के रूबरू इख्तियार की खुद सुपुर्दगी। 4 दहाइयों से सरगर्मियों में थे मुलव्विस। और संतोष नगर हुदूद में नाले से 1 माह की बच्ची की लाश दस्तयाब। शर्मनाक वाक़े के जिम्मेदारों की तलाश के लिए पुलिस मुतहर्रिक। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं पर अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।